Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the classification, occurrence, chemical composition, importance, and uses of simple lipids. Because these oil and fats, these come in the category of the simple lipids. Lipids are of three types: simple, compound, and the derived lipid. But in today's lecture, we will concentrate only about the simple lipids. So first of all, we will see about some simple definition from where these terms comes out. So what is biochemistry? Biochemistry is the branch of chemistry which deals with the study of the biomolecules which are present in our body, in the plant body, which governs all the common activities in the living organisms. So that about the biochemistry. And the molecules which are present in the living organisms are called as the biomolecules. So the complex organic molecules which are present in the living organisms and are responsible for the growth, for the maintenance of the living organisms are called as the biomolecules. They may be the carbohydrates, proteins, enzymes, nucleic acids, vitamins, lipids. But today's lecture is only about the lipids. And lipids are of different type. But finally we will concentrate only on the simple lipids. जो आपके लिपिड्स होते हैं उन लिपिड्स की जो आपकी डिफरेंट टाइप आएंगी, सिंपल, कंपाउंड एंड द डिराइव्ड लिपिड्स, जो भी हम आगे आपको बताने वाले हैं, उनमें से जो लिपिड जिसकी वजह से हमारी जो सेल मेम्ब्रेन बनती है, हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, वो आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं. आपके कौन होते हैं? दीज आर दी फॉस्फोलिपिड्स. तो ये अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे. और ये बाइलेयर बना देते हैं. फास्फो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो फास्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है. और दे दैट इज द बाई मेम्ब्रेन. वहां पे दो मेम्ब्रेन्स होती है आपकी, ठीक है, टू लेयर्स होती है आपकी फास्फोलिपिड्स की, जो हम आगे हम जाके डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी विल कंसंट्रेट अबाउट द लिपिड्स. सो व्हाट आर लिपिड्स? लिपिड्स आर दी नॉन पोलर मोलिक्यूल्स. ये जो लिपिड्स होते हैं ये नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं बिकॉज दे हैव द लार्ज नॉन पोलर एल्काइल पार्ट. इनके ऊपर इनके पास जो होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनेटम होती है. वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनेटम आपकी सेचुरेटेड भी हो सकती है, वो आपकी अनसेचुरेटेड भी हो सकती है, वो एक अलग इशू है. लेकिन these lipids are the non-polar one. These are the non-polar biomolecules because they are present in the living organisms, means in the plants or in the animals, and they are insoluble in water because they are non-polar. So they are insoluble in water or soluble in the organic solvent of low polarity like the chloroform, toluene, ethers, and so on are called the lipids. So what's the complete definition of lipids? The non-polar biomolecules which are insoluble in water but soluble in organic solvent of low polarity such as chloroform, toluene, ether, and so on are called as the lipids. जो लिपिड्स होते हैं ये सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं? इन द ह्यूमन बॉडी दीज molecules can be synthesized in the liver and they are also found in the oil, butter, whole milk, cheese, fried foods and also in some red meats. जो आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? लिपिड्स तो आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. दे में द सिंपल, में द कंपाउंड, द डिराइव्ड. व्हाटएवर में बी द नेचर ऑफ simple, compound or the derived, what are the basic properties and application of these lipids? हम अलग से भी देखेंगे एप्लीकेशन के सिंपल लिपिड की एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं. सो ओवरऑल जो लिपिड्स होते हैं दीज आर दी ऑयली वन. जैसे अभी हमने ऊपर बताया आपको कि जो लिपिड्स होते हैं नॉन पोलर होते हैं, दे हैव द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनेटम. इट में भी द सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन कार्बोनेटम. और जो लॉन्ग चेन कार्बोनेटम है इट मींस वो नॉन पोलर है. नॉन पोलर मींस वो ऑयली होते हैं. जितने भी जो ऑयल्स होते हैं दे आर दी नॉन पोलर क्योंकि they have the long chain of carbonated. So lipids similarly are the oily or the greasy non-polar molecules. They are stored in the adipose tissue of the body. हमारी बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनके अंदर जाके क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं. हमारी बॉडी में भी हो जाते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी ये जाके स्टोर हो जाते हैं. जैसे आपने कैमल को देखा होगा, आगे हम शो भी करेंगे आपको. जो कैमल के ऊपर जब आप बैठते हैं तो जो हम्प होता है, वहां पे वो एडिपोज टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं जो जिसके अंदर की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है. इसलिए जो कैमल होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है इवन देयर इज द वेरी लो अमाउंट ऑफ वाटर. अगर उसके पास बहुत कम वाटर हो, उसको ड्रिंकिंग के लिए वाटर ना मिल पाए, फिर भी कैमल डेजर्ट्स के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर देता है बिकॉज जो एडिपोज जो टिश्यूज होते हैं वो जब उनका ब्रेक डाउन होता है तो उसके दौरान उनको एनर्जी भी मिलती रहती है प्लस वाटर भी वहां से रिलीज होता रहता है और जिसकी वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं.
जो लिपिड्स होते हैं दे आर द एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने आपको पहले बताया था कार्बोहाइड्रेट्स वाले चैप्टर के अंदर, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका जो एग्जांपल है जैसे ग्लूकोज, जिसको हम के बारे में हमने कहा था इट इज द क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हमें एकदम एनर्जी चाहिए तो वो कौन होते हैं, वो आपका ग्लूकोज होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। देखो देर आर दी टू डिफरेंट थिंग्स, देखो बड़े ध्यान से सुन लें आप, दो चीजें अलग हैं। विच इज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन जल्दी एनर्जी देता है, वो तो आपके कौन होते हैं, वो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, वो लिपिड्स नहीं होते क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन विच गिव्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, दीज आर द लिपिड्स। आउट ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स जब आपसे पूछा जाए विच गिव्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो आप हमेशा लिपिड आंसर लिखेंगे। विच इज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो फिर आप कार्बोहाइड्रेट्स लिखेंगे। क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं उसके दौरान जो ऑक्सीजन हमें मिलती है, ऑक्सीजन के द्वारा ही जो हमारा फूड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। फूड में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, आपके फूड के अंदर आपके लिपिड्स भी होते हैं। ऑक्सीडेशन किसका इजीली होगा, ऑक्सीडेशन इजीली उसका होगा विच हैज मोर कंटेंट ऑफ द ऑक्सीजन इन देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर। अगर आप मोलिकुलर स्ट्रक्चर देखते हैं, आप फॉर्मूला कंपेयर कर लें, एक लिपिड का कंपेयर कर लें और दूसरा आप कंपेयर कर लें आपके कार्बोहाइड्रेट का, जैसे ग्लूकोज का ले लें और इधर आप कोई भी सिंपल लिपिड, कंपाउंडेड डिराइव्ड लिपिड आप ले सकते हैं। अगर आप उन दोनों के फार्मूले में बेसिक डिफरेंस देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे, अगर आप परसेंटेज निकालें, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो किस में ज्यादा मिलेगी, वो कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिपिड। तो उसके खुद के अंदर भी ऑक्सीजन है, तो इसलिए उसका ऑक्सीडेशन जल्दी से हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। तो ये बेसिक रीजन होता है जो आपको ध्यान रखना हो। तो बोलो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इटसेल्फ has the higher percentage of oxygen as compared to in the lipids. So the carbohydrate can oxidize much more easily as compared to the lipid. So the quickest source of energy are the carbohydrates, not the lipids. इसलिए जो क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो आपके कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वो आपके लिपिड नहीं होते। लेकिन मैक्सिमम एनर्जी किसमें स्टोर रहती है, लिपिड। तो विच गिव्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिपिड्स। विच गिव्स क्विकेस्ट सोर्स ऑफ, विच आर द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन चीज में आप कभी पजल नहीं होंगे। तो पॉइंट नंबर 2 आपका क्या हुआ, लिपिड्स आर दी energy rich organic molecules, so they provide a important form of energy storage for different life processes. नेक्स्ट आपका पॉइंट ये आ जाता है कि जो लिपिड्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको आगे बताएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि लिपिड्स 3 टाइप के आएंगे आपके, सिंपल, कंपाउंड एंड द डिराइव्ड वन। तो जो आपके कंपाउंड लिपिड होते हैं उनका एग्जांपल होता है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड बाइलेयर, जो आपकी सेल होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर, 2 लेयर्स की बनती है, जो हम बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बता रखा था हमने। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, और जो सेल के अंदर जो भी आपका न्यूक्लियस है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करती है, सेपरेट करती है, उसको अलग करती है। सो लिपिड्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। और ये क्या करती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म ए मैकेनिकल बैरियर एंड इट डिवाइड्स द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया, ये कंपाउंड लिपिड्स ही होते हैं जिनकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। वो आपके जनरली कौन होते हैं, फास्फोलिपिड। वो आपके ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स भी हो सकते हैं, वो स्टीरोलिपिड्स भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है आपके लिपिड्स की, दे प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल सिग्नलिंग as a steroid hormone and they also act as the messenger molecules, means they convey the message from the surface cell, जो सेल का सरफेस है वहां से, और कहाँ पे जो टारगेट मोलिक्यूल्स है वहां पे थ्रू द रिसेप्टर, जो सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं उनके थ्रू टारगेट तक ये मैसेज को पहुंचा देते हैं वहां पे। तो सेल सिग्नलिंग का काम भी करते हैं, मैसेंजर मोलिक्यूल्स का भी काम करते हैं। जो लिपिड्स होते हैं दे प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिहाइड्रेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम द, जैसे आपके जो लीफ होते हैं, लीफ के ऊपर आपके वैक्स होते हैं, जो सिंपल लिपिड होते हैं उसके एग्जांपल आप आगे देख पाएंगे, वैक्सेस भी आते हैं। तो जो वैक्स होते हैं तो वो भी नॉन पोलर होते हैं, तो इसलिए डिहाइड्रेशन इजीली नहीं होती लीफ के सरफेस के ऊपर से। जो आपके बर्ड्स होते हैं उनके जो फेदर होते हैं, जो अपनी बॉडी को ढके रखते हैं, क्योंकि जो पंख होते हैं वो उनके ऊपर होते हैं फेदर, तो उनकी बॉडी के अंदर से डिहाइड्रेशन इजीली नहीं हो पाती ड्यू टू दीज फेदर्स। और फेदर्स के अंदर क्या होते हैं बोलो, लिपिड्स, और इसलिए वो वाटर लॉस नहीं होने देते। मींस लिपिड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिहाइड्रेशन। फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी आपको बताया ही था कि जो वैक्सेस होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन द लीव्स,
the fruits, feather of the birds, fur of the animals, which provides protection from the dehydration. So these are the basic properties and the applications of the lipids. अब हम देखेंगे व्हाट आर लिपिड्स। जैसे अभी हम बात भी की थी, हमने आपको अभी बताया भी था कि लिपिड्स की डेफिनेशन क्या है। These are the biomolecules which are insoluble in water but soluble in organic solvent of low polarity like the chloroform, toluene, ethers and so on. These called the lipids. अब अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो आप जो लिपिड्स हैं बेसिकली अगर स्टार्टिंग में देखें कि उनकी हाइड्रोलाइसिस हो भी सकती है कि नहीं। देखो आपके जो लिपिड्स होंगे उनको जब हम सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं तो उस बेसिस के ऊपर करते हैं। अगर हम उनकी हाइड्रोलाइसिस करें एसिडिक और द बेसिक मीडियम तो उनकी हाइड्रोलाइसिस हो भी सकती है कि नहीं। On that basis whether they can be hydrolyzed or not. The lipids broadly of two types, that is the saponifiable lipids and the non-saponifiable lipids. तो saponifiable lipids कौन होंगे? The biomolecules which can undergo hydrolysis in presence of base or the acid or the enzymes due to the presence of one or more esteric group. जो एस्टर होते हैं वो इजीली हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। तो saponifiable जो लिपिड्स होते हैं, कोई आपसे पूछे why they can be hydrolyzed easily, तो उसका आंसर आप यही लिखेंगे because they have one or more esteric group in their structure and the esters can be hydrolyzed easily. वो आराम से हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? सेपोनिफिएबल लिपिड्स। और जो ना हो सके, जिनकी हाइड्रोलाइसिस ना हो सके, इट मींस उनकी जो स्केलेटन है, उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनके अंदर एस्टेरिक ग्रुप नहीं होंगे। तो जो सेपोनिफिएबल जो लिपिड्स होते हैं वो उसके अंदर कौन आते हैं? द सिंपल और द कंपाउंड लिपिड लाइक वैक्सेस, the triglyceride, the sphingolipids, the phospholipids, they all are the saponifiable lipids. Non-saponifiable lipids कौन होते हैं? जैसे मैंने बताया, which cannot be hydrolyzed in presence of acid or the base or the enzyme due to the absence of the esteric group in their structure. तो वो कौन हुए? वो derived lipids होते हैं, जैसे कोलेस्टेरॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड सो ऑन। जो अब वो जो लिपिड्स हैं आपके सेपोनिफिएबल लिपिड्स हो गए या नॉन सेपोनिफिएबल लिपिड्स हो गए, ये फर्दर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? दे में द सिंपल लिपिड, दे में द कंपाउंड लिपिड। जो सेपोनिफिएबल लिपिड्स हैं ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, सिंपल लिपिड और द कंपाउंड। और नॉन सेपोनिफिएबल की कैटेगरी में कौन आ गया? आपके डिराइव्ड लिपिड्स आ गए। तो आपके जो लिपिड्स हैं, अब बेसिकली हमारे माइंड में ये रखना, वो थ्री टाइप्स के होते हैं। और वो कहाँ से निकली थ्री टाइप्स? जो फर्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन थी वहां से, कि सेपोनिफिएबल लिपिड्स होते हैं और नॉन सेपोनिफिएबल लिपिड्स होते हैं। तो वहां से हमारी फर्दर क्लासिफिकेशन चली और लिपिड्स हमारे बन गए फर्दर थ्री टाइप्स के, सिंपल, कंपाउंड एंड द डिराइव्ड लिपिड्स। जो सिंपल लिपिड्स होते हैं दे फर्दर ऑफ टू टाइप्स, वो आपके ग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं, वो आपके वैक्सेस भी हो सकते हैं। उसके बाद जो ग्लिसराइड होते हैं दे फर्दर ऑफ टू टाइप्स, दे में भी द सिंपल ग्लिसराइड, दे में द मिक्स्ड ग्लिसराइड्स। ये जो सिंपल और जो मिक्स्ड ग्लिसराइड्स होते हैं दे फर्दर ऑफ टू टाइप्स, दे में भी द फैट, दे में भी द ऑयल्स। अब इनको जो सिंपल लिपिड है इनको इन डिटेल हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो हम लेक्चर होगा उसके अंदर हम आपको कंपाउंड लिपिड्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो फिलहाल शुरू में अब हम डेफिनेशन देखेंगे सिंपली, कि सिंपल लिपिड की डेफिनेशन क्या होती है, कंपाउंड की क्या, डिराइव्ड लिपिड्स की क्या होती है। और फिर हम डिटेल जो है सिंपल लिपिड्स की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, कि सिंपल लिपिड फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, ग्लिसराइड और वैक्सेस। फिर ग्लिसराइड फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, सिंपल ग्लिसराइड और द मिक्स्ड। और सिंपल और मिक्स्ड कोलेक्टिवली फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, द फैट और द ऑयल्स। मेनली तो वो फैट ही होते हैं, लेकिन अनसेचुरेशन की वजह से वहां पे ऑयल्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं जो हमारी क्लासिफिकेशन थी, कि जिसमें आपके थ्री टाइप्स के लिपिड बन गए, सिंपल, कंपाउंड और द डिराइव्ड। तो व्हाट आर दी सिंपल लिपिड्स? तो सिंपल लिपिड्स कौन होते हैं? जो सिंपल लिपिड्स है ये बनते कैसे हैं? दी सिंपल लिपिड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन इन बिटवीन द अल्कोहल एंड द फैटी एसिड्स, अल्कोहल और फैटी एसिड के बीच। और अल्कोहल कोई भी आप हो सकता है, व्हाट मे एवर बी द नेचर ऑफ द अल्कोहल, इट मे बी द ग्लिसरॉल और इट मे बी द सिंपल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन जब भी आप अल्कोहल लेते हैं, ग्लिसरॉल या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लेंगे, तो वो लॉन्ग चेन कार्बन एटम वाला अल्कोहल आपका होना चाहिए। तो व्हाट आर फैटी एसिड? फैटी एसिड कौन होते हैं? फैटी एसिड भी लॉन्ग चेन होनी चाहिए आपकी कार्बन एटम की, उसके एक एंड के ऊपर क्या होना चाहिए? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आपके उसे कहते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होते हैं? द मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मीन CH group if the present, if the CH group is present at one end of the long chain of carbon atom, and that long chain may be the saturated or the unsaturated। वो saturated भी हो सकती है, वो unsaturated भी हो सकती है। अल्कोहल कौन लें? अल्कोहल मे बी एनी वन ऑफ
मीन्स वो ग्लिसरॉल भी हो सकता है, कोई और एल्कोहल भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल अब लेने वाले हैं सिंपल लिपिड्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, हमने एल्कोहल ले लिया है यहाँ पे, कौन, ग्लिसरॉल। उसके बाद हम लिया हमने फैटी एसिड। देखो ये जो हमने जिगजैग चेन दिखा रखी है, दैट इज द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। एट वन एंड देयर इज ए COH ग्रुप, COOH, और उस एंड पे हमने अभी R डैश ही लिख के छोड़ रखा। क्या पता ये चेन कितनी और लंबी हो। ऐसे ही क्योंकि ग्लिसरॉल के अंदर आपके 3 OH है, सो वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। तो 1 हमने लिखा, ये सेकंड लिखा, ये थर्ड लिखा। अब जो 3 मोल्स हैं आपके, अब इनके बीच में चलेगी कंडेंसेशन प्रोसेस, और जब ये कंडेंसेशन प्रोसेस चलेगी तो अब यहाँ से बोलो क्या होगा लॉस, यहाँ से लॉस होगा वाटर। यहाँ से OH जो हमने रेड कलर से दिखा रखा है, उधर से H, देखो इस टाइप से वाटर लॉस, 1 वाटर मोलिक्यूल लॉस हो जाएगा, एंड सेकंड वाटर मोलिक्यूल, द थर्ड वन, एंड आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर मोलिक्यूल द एस्टेरिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। एस्टेरिक ग्रुप यहाँ पे जनरेट हो जाएगा वाटर मोलिक्यूल के लॉस होने के बाद। तो कोई वाटर मोलिक्यूल लॉस हुआ और अब ये नया ग्रुप आपका लग गया, यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। और जो रेड कलर से हमने दिखा रखा है दैट इज द न्यू बॉन्ड, क्योंकि जो आपके फैटी एसिड थे उसमें क्या बच गया, कार्बोनिल ग्रुप। देखो सभी में हमने सी डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड को हमने करके दिखाया। उसके बाद उधर से O और H के बीच का बॉन्ड टूटा था, देखो CH2 के आगे O है, CH के आगे O है, CH2 के आगे O। तो न्यू बॉन्ड किसके बीच बना, ग्लिसरॉल वाला O और इधर कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन के बीच रेड कलर से हमने बॉन्ड दिखाया। दैट दिस कंपाउंड दस फॉर्म कॉल्ड द ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि ग्लिसरॉल यहाँ पे अल्कोहल था इसलिए इस वर्ड यहाँ पे ग्लिसर आ गया, ग्लिसर। साथ के साथ ट्राई क्यों, क्योंकि जो इसके अंदर 3 OH ग्रुप थे, इसलिए 3 जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स ने उनके साथ रिएक्ट किया, सो कॉल्ड द ट्राइग्लिसराइड। अगर आपका ग्लिसरॉल होता और मोलिक्यूल एक ही होता, ध्यान दें मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक ही फैटी एसिड का मोलिक्यूल होता, एक ही, देखो बचे हुए 2 को मैं छुपा लेता हूँ यहाँ पे, देखो ऐसे आपको देखो समझाने के लिए, मान लीजिए मैं इस मोलिक्यूल को यहाँ पे छुपा देता, देखो ये ना होता, देखो इस टाइप से ये नहीं होता, और यहाँ पे इसके आगे H ही लगा होता, देखो यहाँ पे ये नहीं होता। तो आप इसे कहते हैं मोनोग्लिसराइड, क्योंकि एक ही फैटी एसिड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हुई, सो कॉल्ड द मोनोग्लिसराइड। अगर यहाँ पे 2 होते, ये बोलो कितने होते यहाँ पे 2 होते, 2 के साथ रिएक्शन हो जाती, एक के साथ देखो नहीं होती, एक ये OH बचा रह जाता, देखो इस टाइप से। मान लीजिए ये ना होता, देखो इस टाइप से, यहाँ पे नीचे वाला तो CH2OH यूं का यूं रह जाता, देखो ये CH2OH, ये नीचे वाले के साथ देखो रिएक्शन नहीं होती, देखो मैंने ऊपर से भी हटा दी, सिर्फ 2 ही मोल होते फैटी एसिड के। मान लो ये ना होता, देखो यहाँ से, तो नाउ दिस कॉल्ड द डाइग्लिसराइड। अब आप मतलब समझ गए होंगे, एग्जाम में आपसे पूछ भी ले व्हाट आर मोनोग्लिसराइड, व्हाट आर दी डाइग्लिसराइड, व्हाट आर दी ट्राइग्लिसराइड। तो ग्लिसराइड का मतलब आपका एल्कोहल, तो ग्लिसरॉल है, और मोनो डाई और ट्राई का मतलब अगर जो ग्लिसरॉल है 1 मोल ऑफ फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, मोनोग्लिसराइड। अभी फिलहाल जो आपको दिख रहा है सामने ये है आपका डाइग्लिसराइड, क्योंकि हमने 2 ही दिखा रखे हैं। अब जो मैंने क्रॉस किया था, देखो अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, अब देखो आपके तीनों के तीनों दिखा दी हमने रिएक्ट करके, आपके 3 वाटर मोलिक्यूल लॉस हो गए, 3 फैटी एसिड के साथ रिएक्शन हो गई, सो कॉल्ड द ट्राइग्लिसराइड। अब आप समझ गए होंगे कि मोनोग्लिसराइड भी हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड भी हो सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर of the fatty acid molecules react with the glycerol molecule. If one fatty acid molecule react with glycerol, monoglyceride will be formed. If the 2 fatty acid molecules react with the glycerol, then the compound thus formed called the diglyceride. If the 3 moles of fatty acid react with the glycerol, the compound formed called the triglyceride. तो ये थे आपके सिंपल लिपिड की डेफिनेशन, और इनका एग्जांपल क्या हुए, फैट, ऑयल एंड द वैक्सेस, ये इसके एग्जांपल बनेंगे। सिंपल जो लिपिड होते हैं कि फर्दर भी क्लासिफिकेशन आएगी, फर्दर भी टाइप आएगी, वो बाद में देखेंगे हम। फिलहाल हम देख रहे हैं तीनों की डेफिनेशन। व्हाट आर सिंपल लिपिड, तो सिंपल लिपिड में आपने क्या देखा, एक तो आपका एल्कोहल होना चाहिए, एल्कोहल कोई भी हो सकता है, जैसे ग्लिसरॉल हमने ले लिया, प्लस फैटी एसिड होंगे। फैटी एसिड क्या होते हैं, if the CH group is present at one end of the long chain of carbon atom, then these type of carboxylic acids are called as the fatty acids. नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं। कंपाउंड लिपिड और सिंपल लिपिड में बस एक ही सिंपल सा डिफरेंस आप देख पाएंगे, वो क्या, वो ये होगा जो आपने जो 3 मोल्स लिए हैं फैटी एसिड के, उन 3 मोल में से फैटी एसिड के तो मोलिक्यूल होंगे ही होंगे, तो तीन में से जो आपने 3 मोल्स लिए फैटी एसिड के, तो कंपाउंड लिपिड के अंदर
out of these 3 mole there will be only 2 moles of fatty acid and 1 mole is of other molecule like phosphoric acid, make the carbohydrates and so on. अभी हम देखते हैं, देखो व्हाट आर कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड वो होते हैं जिसके अंदर बोलो क्या होता है, एग्जांपल फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स आएंगे। जैसे एक तो आपके ग्लिसरॉल ही हो गया, जैसे अभी हमने देखा था। उसके बाद और मोल्स देखो क्या लेंगे, हमने ये फैटी एसिड लिया, देखो उसी टाइप से जैसे आपके सिंपल लिपिड में लिया था। सेकंड मोल भी हमने फैटी एसिड का देखो ले लिया, लेकिन जो थर्ड मोल हम लेंगे वो कुछ और ग्रुप होगा। देखो डेफिनेशन देखिए अब क्या है, द एस्टर, क्योंकि बॉन्ड कैसा बनता है, अभी आपने देखा था जब रिएक्शन चली थी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में, जो ये बॉन्ड बनता है ये बोलो कौन है। देखो ये तो आपका आर था इतना बड़ा, ये आर ही तो है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। आर सी ओ ओ के आगे भी कार्बन ही लगा, आर सी ओ आर, तो एस्टर होते हैं, तो एस्टेरिक बॉन्ड बनते हैं, तो एस्टर्स ही तो बने। वही डेफिनेशन में हमने सिंपल लिपिड में लिखा था कि द एस्टर्स ऑफ, बोलो किसके बीच बने, फैटी एसिड एंड द एल्कोहल्स, तो वो थे आपके सिंपल लिपिड्स। और यहाँ पे आपके कौन बने, बोलो आपके कंपाउंड लिपिड, द एस्टर्स किसके बीच बने, फैटी एसिड एंड विद द एल्कोहल कंटेनिंग आल्सो सम अदर ग्रुप, प्लस में कुछ और ग्रुप भी हो, जैसे थर्ड ग्रुप हमने यहाँ पे ले लिया फास्फोरिक एसिड। लेकिन फास्फोरिक एसिड भी ऐसा जिसके एक एक क्या होनी चाहिए, बोलो और किससे अटैच होनी चाहिए, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। आप ध्यान से देख पा रहे हैं ये सिंपल फास्फोरिक एसिड नहीं है, इसमें एक ओ के साथ देखो हमने जिगजैग फॉर्म में लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम हमने शो कर रखी है। उसी टाइप से यहाँ से भी बोलो क्या लॉस होने वाला है, वाटर। फास्फोरिक एसिड का बोलो ये क्या निकाल दिया, बोलो ये OH और H, यहाँ से भी बोलो क्या निकला, OH और H, और यहाँ से भी बोलो क्या निकला, OH और H। देखो इस टाइप से फिर वाटर मोलिक्यूल लॉस हो जाएंगे और फाइनल आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा इस टाइप से। तो ये कौन हुए, बोलो आपके कंपाउंड लिपिड। एग्जाम्पल क्या है, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड का अगर हमने यहाँ पे ये एज ए जो अदर जो ग्रुप लिया वो कौन लिया, बोलो आपका सब्स्टिट्यूटेड फास्फोरिक एसिड हमने ले रखा है यहाँ पे, तो फास्फोलिपिड। अगर हम कोई और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जैसे ग्लाइकोलिपिड्स आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिराइव्ड लिपिड के बारे में। डिराइव्ड जैसे नेम यहाँ पे बिल्कुल सजेस्ट करता है, शो करता है, डिराइव्ड जो डिराइव हुए कहाँ से डिराइव होंगे, जो पहले वाली 2 टाइप है आपकी, फर्स्ट टू टाइप्स कौन सी आपके लिपिड की, सिंपल और द कंपाउंड वन। सो डिराइव्ड लिपिड्स आर द लिपिड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द सिंपल और द कंपाउंड लिपिड्स। द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ द सिंपल और द कंपाउंड लिपिड्स। अगर हम सिंपल लिपिड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, अगर हम कंपाउंड लिपिड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो इनकी हाइड्रोलाइसिस के बाद जो भी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, दिस ऑल कॉल्ड एज द डिराइव्ड लिपिड्स। उसे आप डिराइव्ड लिपिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ध्यान से देखें, सिंपल लिपिड में कौन बना था, बोलो प्रोडक्ट, ये ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड बन गया नहीं, ट्राइग्लिसराइड देखो यहाँ पे जो बना। आपके कंपाउंड लिपिड में कौन बने, देखो ये फास्फोलिपिड, देखो जो प्रोडक्ट बने हुए नीचे। अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दे, क्या कर दे, वाटर डाल दें, हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दें एसिड और द बेसिक मीडियम में, तो हमें क्या मिलेगा, ट्राइग्लिसराइड को हम ब्रेक डाउन कर दें तो क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड दोबारा मिल जाएंगे। तो ग्लिसरॉल क्या है, एक डिराइव्ड लिपिड। फैटी एसिड क्या है, दे आर द डिराइव्ड लिपिड। कंपाउंड लिपिड में क्या मिलेगा, फास्फोलिपिड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लिसरॉल मिलेगा, बोलो क्या है, डिराइव्ड लिपिड। फैटी एसिड मिलेंगे, बोलो क्या है, डिराइव्ड लिपिड। तो means the hydrolysis product of the simple lipid or the compound lipid are called as the derived lipid. So the compound which are obtained by the hydrolysis of simple or the compound lipid and contain the hydrocarbon ring or the long hydrocarbon chain are called as the derived lipid. Example क्या हो गए, जैसे ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, अगर हम रिवर्स रिएक्शन करते हैं तो ये हमें मिलेंगे, प्लस स्टीरॉइड भी हो सकते हैं। स्टीरॉइड कौन कौन, जैसे बाइल एसिड, सेक्स हार्मोन्स, और स्टीरोल्स भी हो सकते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, एर्जोस्टीरोल्स, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स भी हो सकते हैं, कैरोटीन, और कौन, जेंथोफिल। तो ये ऑल क्या है, ये सारे के सारे डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। इनके ऊपर अलग से चैप्टर भी है आपके आगे जाके, स्टीरॉइड के ऊपर भी है, स्टीरोल्स के ऊपर भी है, कैरोटिनॉइड्स के ऊपर भी है, कैरोटीन एंड सो ऑन। इस टाइप से वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद अब हम कंसंट्रेट करते हैं सिर्फ अपने सिंपल लिपिड के ऊपर। सिंपल लिपिड की फर्दर टाइप्स, सिंपल लिपिड आपके ग्लिसराइड भी हो सकते हैं, वो आपके वैक्सेस भी हो सकते हैं। ये किस चीज में कर रहे हैं डिफरेंस, ये डिफरेंस इस चीज में करेंगे कि अगर हमारा जो एल्कोहल है, जैसे नेम सजेस्ट करता है ग्लिसराइड, ग्लिसरॉल होगा, बोलो कौन होगा आपका, ग्लिसरॉल। इफ द एल्कोहल इज द ग्लिसरॉल, तो ग्लिसराइड्स होंगे। किसके साथ रिएक्शन होगी आपकी, फैटी एसिड के साथ। फैटी एसिड क्या है, दे आर दी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भी कैसे, जिसमें CH ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट हो, एट द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, तो वो आपके फैटी एसिड है। रिएक्शन ग्लिसरॉल के साथ होगी, जैसे हमने ये शो किया, ये ग्लिसरॉल, उसके साथ ये फैटी एसिड जिसमें जिगजैग चेन कार्बन एटम की है, एक एंड पर CH ग्रुप प्रेजेंट है,
ये फिर फैटी एसिड, ये 3 मोल्स आपके फैटी एसिड के, क्योंकि हम ट्राइग्लिसराइड बना रहे हैं। हमने बताया था ना ग्लिसराइड आपके मोनोग्लिसराइड भी हो सकते हैं। देखो अगर हम एक ही मोल्स ले ले सिर्फ, देखो ध्यान दे, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर एक ही मोल हम ले लें और इसके अंदर से देखो हम रिएक्शन कर दे, देखो इस टाइप से ऐसे 2OH को बचा रहने दें और अब अपना प्रोडक्ट बना दो। बोलो क्या कहलाएगा? मोनोग्लिसराइड। एक और ले ले हम मोल और अब इसके अंदर से भी देखो वाटर मोलिक्यूल लॉस कर दें, इस OH को बचा रहने दे जो नीचे वाला। बोलो क्या कहलाएगा? डाइग्लिसराइड। जो प्रोडक्ट बनेगा डाइग्लिसराइड बन जाएगा। अगर हम थर्ड ले लेते हैं, अब इसके अंदर से भी वाटर मोलिक्यूल लॉस कर दें, तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा? दैट इज द ट्राइग्लिसराइड। देखो वाटर मोलिक्यूल लॉस हुआ और आपका ये प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट कॉल्ड द ट्राइग्लिसराइड। अगर हम एक ही फैटी एसिड का मोल लेते हैं और फिर प्रोडक्ट बना दो, 2OH बचे रहेंगे ग्लिसरॉल के, तो आपके क्या कहलाता है? मोनोग्लिसराइड। अगर आप 2 मोल ले लें आपके फैटी एसिड के, तो क्या होगा? जो प्रोडक्ट बनेगा वो डाइग्लिसराइड कहलाएगा और ग्लिसरॉल का एक OH बचा रहेगा। अगर तीनों ही मोल आप डाल दें, 3 मोल्स आप फैटी एसिड के यूज कर दें रिएक्शन के दौरान, तो आपका प्रोडक्ट ट्राइग्लिसराइड कहलाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे जो अल्कोहल है वो फिक्स था हमारा, वो हमें कौन लेना पड़ा? बोलो ग्लिसरॉल। अगर हम ग्लिसरॉल ना लें, कोई और अल्कोहल ले लें, लेकिन वो दूसरा अल्कोहल भी है ना ऐसा होना चाहिए जिसमें जो OH है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो? एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनेटम, लाइक दैट ऑफ द फैटी एसिड। फैटी एसिड में भी कहाँ पे प्रेजेंट है? CH ग्रुप इज प्रेजेंट एट द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनेटम, एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनेटम। सिमिलरली वैक्सीज में देखो हम क्या करेंगे, देखो ये हमने R लगाया, देखो है ना जिगजैग फॉर्म की चेन, तो लॉन्ग चेन है आपके कार्बोनेटम की और उसके एक एंड पे कौन प्रेजेंट है? OH। तो मींस लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल लेंगे। मोनो, डाई, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल आप पढ़ चुके हैं। किसी कंपाउंड के अंदर अगर एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप उसे कहते हैं मोनो। मोनो का मतलब वन OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। 2 OH आर प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। 3 OH ग्रुप आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ पे जो अल्कोहल लेंगे वो हम कैसे लेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। वो भी कैसे हो? जो OH ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट हो? एट द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनेटम। तो ये आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। बोलो कितने लिए? ग्लिसरॉल में हमने कितने OH थे उसके अंदर? ग्लिसरॉल के अंदर 3 थे। देखो यहाँ पे भी हमने 3 मोल्स ले लिया आपके अल्कोहल के। और फैटी एसिड के कितने मोल लेंगे उसी टाइप से? 1, 2 एंड 3 मोल्स ले लिए हमने फैटी एसिड के। सेम रिएक्शन चलेगी उसी टाइप से जैसे आपके ग्लिसराइड में चली थी। डिफरेंस सिर्फ इतना ही तो है कि वहां पे ग्लिसरॉल था, यहाँ पे 3 मोल्स अल्कोहल के आपने ले लिए। तो उसी टाइप से क्या हुआ, यहाँ पे देखो रिएक्शन चली, उसी टाइप से देखो वाटर लॉस हुआ। ये OH और H, यहाँ से भी देखो OH और H, देखो ये वाटर मोलिक्यूल लॉस किया, इधर से भी OH और H, देखो ये वाटर मोलिक्यूल ने लॉस किया। तो उसी टाइप से ये एस्टर्स ही बनेंगे आपके। तो दीज प्रोडक्ट दस फाउंड कॉल्ड एज द वैक्सीज, उन्हें वैक्सीज कह देते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं जो ग्लिसराइड थे, ये फर्दर 2 टाइप के हो सकते हैं। दे में द सिंपल ग्लिसराइड, दे में भी द आपके मिक्स्ड ग्लिसराइड। किस बेसिस के ऊपर? देखो हम पीछे आपको दोबारा दिखाते हैं, आपने देखा होगा ग्लिसराइड के अंदर देखो ये जो आपके फैटी एसिड है इसके अंदर देखो जो R हमने लिख रखे R डैश और R डबल डैश, सिर्फ इसके बेसिस के ऊपर। अगर ये तीनों R एक ही हो, मान लीजिए R की वैल्यू तीनों में CH3 हो, तीनों में C2H5 हो, समझ गए? तो यानी तीनों के अंदर जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनेटम है और जो R ग्रुप है ये सेम लेंथ के हों, सेम ग्रुप हो आपका, तो वो आपके सिंपल ग्लिसराइड कहलाएंगे, अदरवाइज द मिक्स्ड वन। तो इसी बेसिस के ऊपर हम देख रहे हैं कि जो R ग्रुप लगा हुआ है आपका फैटी एसिड के ऊपर, वो अगर सेम नेचर का है तो सिंपल, अगर वो डिफरेंट R की वैल्यूज हैं तीनों फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स के अंदर तो आपके मिक्स्ड कहलाएंगे, सिंपल और द मिक्स्ड वन। तो ग्लिसराइड फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, द सिंपल ग्लिसराइड और द मिक्स्ड ग्लिसराइड्स। So the esters of the same type of fatty acid with the glycerol are called as the simple glyceride। आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हम देखो क्या करने वाले हैं। यहाँ पे जो हमें अल्कोहल लेना है वो हमें अल्कोहल नहीं लेना था, यहाँ पे बोलो हमें क्या लेना? ग्लिसराइड की टाइप है, तो हम यहाँ पे ग्लिसरॉल लेंगे। तो आप ये थोड़ी करेक्शन कर लेंगे यहाँ पे, ये आपके हम अल्कोहल नहीं लेंगे। बोलो कौन लेना है ये हमें? देखो मैं अब करेक्शन कर देता हूँ, ये CH2, यहाँ पे CH आएगा, ये CH2 आएगा, ठीक है। बीच में आप सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे, देखो इस टाइप से। ग्लिसरॉल के साथ ही करनी है ये रिएक्शन हमें, क्योंकि ग्लिसराइड की ही टाइप है, तो ये ग्लिसरॉल रहेगा। आप सभी ये बात नोट डाउन कर लें, ये करेक्शन आप कर लेना। अल्कोहल यहाँ पे ग्लिसरॉल ही रहेगा। तो ये यहाँ से थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई, तो मैंने करेक्शन कर दी है, आप भी कर लेंगे बीच में। तो बोलो कौन लिया हमने? ये देखो बीच में सिंगल सिंगल हमने बॉन्ड भी लगा दिए, तो ग्लिसरॉल है यहाँ पे। तो उसी टाइप से
हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये वैसा ही होगा जैसे हमने ग्लिसराइड का बताया था। डिफरेंस सिर्फ कितना रहेगा, देखो यहाँ पे ये आर आर और देखो तीनों जगह मैंने आर पुट किया, मींस ऑल आर सेम। तो ये जो प्रोडक्ट बना बोलो ये क्या कहलाया यहाँ पे आपके सिंपल ग्लिसराइड। यहाँ पे भी आप करेक्शन कर लेंगे, ये CH2 है, ये सिंगल बॉन्ड ये बोलो कौन होगा, ये CH, और यहाँ पे भी आप करेक्शन कर लेना, ये CH2 होगा, और ये बीच में देखो सिंगल बॉन्ड दिखा देना यहाँ पे सिंगल लाइन लगा के, ये ग्लिसरॉल आएगा यहाँ पे। आप सभी इसको करेक्शन, इसकी करेक्शन जरूर कर लेंगे। तो ये सिंपल ग्लिसराइड है, यहाँ से हम हटा देंगे इसको नीचे, ये वैक्सीज नहीं है, सिंपल ग्लिसराइड्स आपके बन चुके हैं, बिकॉज इन ऑल द थ्री केसेस द वैल्यू ऑफ आर इज सेम। नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्स्ड ग्लिसराइड। मिक्स्ड कौन होंगे, जिसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ आपके फैटी एसिड हो। तो इसके अंदर भी देखो ये करेक्शन रहेगी, ये हमारे डायग्राम के अंदर ये थोड़ी एरर हो गई, तो इसको देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हम ग्लिसरॉल की ही स्ट्रक्चर बनाएंगे, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, देखो बीच में जिग जिग चेन नहीं आएगी, सिंगल बॉन्ड आएगा। ये मैंने देखो सिंपल लाइन लगा दी है यहाँ पे। तो ये आपका कौन है, ये आपका है ग्लिसरॉल। बोलो कौन है यहाँ पे, ग्लिसरॉल। और अब जो हम रिएक्शन करेंगे देखो फैटी एसिड के साथ, इन ऑल द थ्री आर आर नोट दस आर आर डैश, ये आर डबल डैश है, देखो यहाँ पे आर डबल डैश लगा देंगे हम, तो ये तीनों डिफरेंट हैं, मींस ये सेम नहीं है। सो कॉल्ड द मिक्स्ड ग्लिसराइड। सो द एस्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड विद द ग्लिसरॉल आर कॉल्ड एज द मिक्स्ड ग्लिसराइड, उसे आप मिक्स्ड ग्लिसराइड कहते हैं। ऐसे ही आप नीचे जो फाइनल डायग्राम बनाए उसके अंदर भी आप ये करेक्शन कर लेंगे, ये CH2 और यहाँ पे बोलो क्या लगा देंगे आप, ये CH, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे क्या आएगा बोलो CH2, और ये सिंगल बॉन्ड रहेगा देखो यहाँ से बीच में ग्लिसरॉल है, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो बने ये बोलो कौन बन गए, मिक्स्ड ग्लिसराइड्स। बोलो कौन बन गए आपके, ये मिक्स्ड ग्लिसराइड बन चुके हैं। तो ये था स्लाइड डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ आर। अगर तीनों आर सेम है सिंपल ग्लिसराइड, अगर वो डिफरेंट है तो मिक्स्ड ग्लिसराइड। सिंपल और मिक्स्ड ग्लिसराइड फर्दर आपके दो टाइप के हो सकते हैं, दे विद द फैट, दे विद द ऑयल। किसके बेसिस के ऊपर, कि जो हम यहाँ पे जो रिएक्शन करेंगे, देखो एक ग्लिसरॉल हमने लिया और उसकी बोलो कौन लिए, फैटी एसिड हमने ले लिए। इसमें आप देखें जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनेटम है तीनों फैटी एसिड में, उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। आप ध्यान से देखें जिगजैग चेन में कहीं पर भी आपको मल्टीपल बॉन्ड नहीं दिख रहा, कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा। इट मींस ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। बोलो ये फैटी एसिड हमने कैसे लिए, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं इन विच देयर इज ओनली ए सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन द C एंड C एटम। जो लॉन्ग चेन कार्बोनेटम की उसमें C और C के बीच में आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, तो ऐसे फैटी एसिड को आप क्या कहेंगे, दे आर दी सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड ले लें हम और उसकी रिएक्शन किसके साथ करें, ग्लिसरॉल के साथ ही, और फिर जो आपका प्रोडक्ट बनता है दैट कॉल्ड एज बोलो क्या, फैट है। ये भी ट्राइग्लिसराइड, लेकिन अब ये फैट होंगे। पर्टिकुलरली इस ट्राइग्लिसराइड को आप क्या कहेंगे, दीज आर दी फैट्स। सिमिलरली अगर हम ऐसा ले लें, द एस्टर्स ऑफ द सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की रिएक्शन कर दे ग्लिसरॉल के साथ, देखो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, देखो रेड कलर से हमने देखो ये डबल बॉन्ड दिखा दिए। तो डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन आ चुकी है जो लॉन्ग चेन है आपके कार्बोनेटम की उसके अंदर। तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ अगर हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन देखो करते हैं, उसी टाइप से देखो वाटर लॉस होगा इसके अंदर भी। देखो भाई यहाँ से वाटर लॉस, देखो ये वाटर लॉस करते हुए हम शो कर देंगे यहाँ पे, जैसे कि इधर भी हम शो कर देते हैं आपके फैट्स के अंदर भी। ये 3 मोल्स हमने लिए, तो 3 मोल्स ऑफ वाटर लॉस होंगे यहाँ पे। और इस टाइप से जो ये ट्राइग्लिसराइड्स बनेंगे आप इन्हें कह देंगे ऑयल्स। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर वो हमें सॉलिड फॉर्म में दिखते हैं या आपके लिक्विड फॉर्म में दिखते हैं, वो क्यों दिखते हैं, वो उसके नेचर के ऊपर के फैटी एसिड आपका सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो आपके सिंपल और मिक्स ग्लिसराइड फर्दर आपके फैट्स भी हो सकते हैं, दे में बी द ऑयल। occurrence of the oil और फैट, ये मिलते कहाँ हैं, the oils and fat occurs widely in the plant and the animals। ये एनिमल्स में मिलते हैं और प्लांट्स के अंदर भी मिलते हैं। प्लांट्स में कहाँ पे, they are mainly found in the seeds। और एनिमल्स में कहाँ पे, इन एनिमल्स ये कहाँ पे मिलते हैं, अंडर द स्किन, इन द टिश्यूज और इन द मसल्स मिलते हैं। अब जैसे एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल्स के एग्जांपल क्या है, तिल ऑयल, लिंसीड ऑयल। एनिमल ऑयल्स के क्या है, व्हेल ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। वेजिटेबल फैट्स के क्या है, कोकोनट ऑयल, वेजिटेबल घी। एनिमल फैट का एग्जांपल क्या है, लार्ड, बटर, इनके एग्जांपल हो जाते हैं। अब केमिकल कंपोजिशन देखेंगे हम, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ऑयल एंड द फैट, मींस ये होते कैसे, इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। दे आर द नॉन वोलेटाइल, दे आर द ऑर्डरलेस, they possesses the property like that of the esters, they are composed
ये कैसे बनते हैं, दे आर कंपोज, वो हमने देखा ही था इनकी प्रिपरेशन के दौरान जो हम रिएक्शन कर रहे थे आपके, या तो कोई अल्कोहल लिया, वो ग्लिसरॉल भी था, सिंपल अल्कोहल भी हो सकता है, किसके साथ, फैटी एसिड के साथ हमने उसकी रिएक्शन की थी। फैटी एसिड आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, तो उनके बीच जब रिएक्शन चलती है वाटर लॉस होता है, तो यानी जो अल्कोहलिक पार्ट है वो किसके साथ कंबाइन करता है, वो आपके फैटी एसिड के साथ कंबाइन कर जाता है कुछ। और उसके बाद नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन क्या आ जाती है, जो वेजिटेबल फैट्स होते हैं, दे आल्सो कंटेन स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ, बोलो क्या, जो आपके कम, हमने शुरू में आपको बताया था लिपिड में भी था, सिंपल कंपाउंड ऑफ द डिराइव। तो जो वेजिटेबल फैट होता है, इट आल्सो हैज स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द phospholipid, the sterols, the vitamins, the pigments, along with the simple glyceride esters। ये भी इसकी प्रोपोर्शन भी कुछ कुछ होती है, जो हम आगे जाके कंपाउंड लिपिड्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस एंड द यूजेस, स्पेशली अबाउट द ऑयल एंड द फैट्स। जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में ही बताया था, जो इसके इंपॉर्टेंस और यूजेस थे, बेसिकली लिपिड्स देखा था, अब हम देख रहे हैं ऑयल्स और फैट के बारे में, क्योंकि ऑयल और फैट क्या है, दे आर दी टाइप, दे आर दी एग्जांपल ऑफ लिपिड्स, क्योंकि लिपिड तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, दे विद द सिंपल, दे विद द कंपाउंड, दे विद द डिराइव्ड वन, लेकिन जो ऑयल और फैट है, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ द सिंपल लिपिड्स। तो जो ऑयल्स और जो फैट है, दे आर द मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लाइक दैट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, so they provide an important form of energy storage for different life processes। जैसे वो, अब हम दोबारा से आपको ज्यादा टाइम इस चीज पे नहीं लगाएंगे, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपके लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स, lipids provide more energy, the carbohydrates provide less energy, but the carbohydrates provide energy very quickly and the lipids provide energy very slowly। तो क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आपके कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, और जो मोर एनर्जी देते हैं वो आपके लिपिड्स ही होते हैं। जो लिपिड्स होते हैं, दे आर द ऑयली, दे आर द ग्रीसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल द स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू ऑफ द बॉडी, दे सर्व एज द एनर्जी रिजर्व फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनिमल्स। एनिमल्स में आप देखिए जैसे कैमल होता है, हमने बताया था ना, इसके देखो जो ऊपर, जो आपको ये हाइट के ऊपर ये हम्फ दिख रहा है, देखो मैंने हम्फ लिखा है यहाँ पे, ये जो हम्फ है जिसके ऊपर आप बैठते हैं और फिर हम्फ को ही तो आप पकड़ते हैं, जो हम्फ होता है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके एडिपोज टिश्यू होते हैं, फैट स्टोरेज होता है यहाँ पे, एंड दैट फैट ब्रेक डाउन टू सप्लाई देम द एनर्जी एंड द मॉइस्टनेस। कब, सो दे कैन सर्वाइव when they move to a longer distance without drinking water। इसलिए विदाउट ड्रिंकिंग वाटर ये सर्वाइव कर सकते हैं और लंबे कई कई किलोमीटर तक ये चलते भी रहते हैं, तो ये कैमल्स के अंदर भी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, दे सर्व एज द कैरियर ऑफ इंपॉर्टेंट फैट सोल्यूबल विटामिन्स। आपने ये जानते हैं कि जो आपकी विटामिन्स होती हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दे आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और द फैट सोल्यूबल विटामिन। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होती है वो होती है ए, डी, ई और के, ए, डी, ई और के, और जो बच गई विटामिन बी और सी, दे आर दी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। जो आपकी फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं, दे गेट स्टोर्ड, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, बोलो, ये स्टोर्ड रहती है। इन्हें कॉन्टिन्यूअसली एक बार हमने डाइट में ले लिया तो ये नहीं कि डेली की डेली लेने की आवश्यकता पड़ती है, यानी स्टोर हो जाती है। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होती हैं, विटामिन बी और सी, दे गेट एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरिन, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है, इसलिए दे आर कॉन्टिन्यूअसली बिन रिक्वायर्ड थ्रू द बैलेंस डाइट। इसलिए बैलेंस डाइट के थ्रू हमें कॉन्टिन्यूअसली हमारे फूड के अंदर हमें विटामिन बी और सी को लेना पड़ता है, और ये हमारी क्या हो जाती है, बोलो, स्टोर हो सकती है। सो दे सर्व एज द कैरियर of important fat soluble vitamins like the A, vitamin D, vitamin E and vitamin K to the body। They are main building material for the living organisms like that of the protein and the carbohydrates। They are used in the soap industry। They are also used in the manufacture of the paints। देखो ये सोप इंडस्ट्री के अंदर, जैसे ये सोप आपको दिख रहा है, ये जो सोप है ये क्या है, ये इसके अंदर ये जो लिपिड्स ही होते हैं। आप अगर आप आगे देख पाएंगे, जो मैंने आपको बताया था, आपके तीन टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और बोलो कौन, डिराइव्ड लिपिड। तो जो आपके ट्राइग्लिसराइड होते हैं, आगे हम देखेंगे जब हम ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे बेसिक वीडियो में, तो फिर हमें मिलता है सोडियम और द पोटेशियम साल्ट और फैटी एसिड। तो वो कौन होते हैं, वो सोप होते हैं। सो दे आर यूज्ड इन द सोप इंडस्ट्री। सोप फॉर्मेशन में, सोप के मैन्युफैक्चर में जो आपके ट्राइग्लिसराइड ही यूज किए जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बेसिक मीडियम के अंदर NaOH या KOH डाल के, और जिससे हमें सोडियम और द पोटेशियम साल्ट और फैटी एसिड मिल जाते हैं, उन्हीं को आप सोप कहते हैं। मीन्स
ऑयल और फैट कहाँ पे यूज कर सकते हैं? दे आर यूज्ड इन द सोप इंडस्ट्री। उसके बाद दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द पेंट्स। देखो पेंट्स, जो आपको पेंट दिख रहा है, मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट में भी क्या यूज होते हैं? आपके ऑयल और द फैट्स। उसके बाद जैसे जो बूट पॉलिश होती है, उसके ऊपर जो हम पॉलिश करते हैं शूज के ऊपर, ये क्या होते हैं? ये भी आपके कौन होते हैं? ऑयल और द फैट, लिपिड्स ही होते हैं आपके। जो कैंडल होता है, कैंडल क्या है? ये आपके लिपिड्स ही होते हैं। तो दे आर यूज्ड इन ऑल दीज, इन सभी के अंदर आपके ऑयल और फैट मींस लिपिड आपके यूटिलाइज होते हैं। नेक्स्ट, they forms the protein coating on the surface, they forms the protein coating on the surface of the living organism against the water loss, against the microorganisms. So they are used for making the waterproofing, like in the coating of the carbon paper. आपने देखा होगा पहले, जो किसी भी आप शॉप के ऊपर जाते हैं, आप कोई भी परचेज करते हैं, परचेज के बाद जो आपको बिल देते हैं, जैसे आपको एक बिल बुक दिख रही है, बुक जो बिल बुक का जो पेज होता है, फर्स्ट पेज, जिसके ऊपर वो लिखते हैं आइटम्स के नाम, आगे उसका रेट लिखते हैं, जो बिल आपको देते हैं, वो तो ओरिजिनल कॉपी तो आपको दे देते हैं, उसकी जो फोटो कॉपी अपने पास रखते हैं। कैसे? आपको एक कार्बन पेपर दिख रहा है, देखो ब्लूइश कलर का जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ग्रेइश कलर का, तो दो पेपर के बीच में जो लगाते हैं, दैट इज द कार्बन पेपर। बोले कौन होता है? कार्बन पेपर। दो के बीच में जब हम ऊपर लिखते हैं, तो उसकी यूं का यूं जो हम ऊपर लिखते हैं, वो नीचे वाले पेज के ऊपर आपके कार्बन जो है वो उसके ऊपर राइटिंग की फॉर्म में आ जाता है। तो साइमल्टेनियसली हमारी ऊपर लिखी हुई चीज भी नीचे आ जाती है। कौन है वो? कार्बन पेपर। तो वही हम बता रहे हैं, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द वाटर प्रूफिंग, द कोटिंग ऑन द कार्बन पेपर। और द इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स की तरह भी इनको यूज करते हैं। जैसे आपको पता है, जो फेदर्स होते हैं, हमने बताया था आपको कि वो क्या करते हैं, जो उनके ऊपर जो वैक्स होता है, दे मिनिमाइज, बोलो किसको करते हैं? वेटिंग को। जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर जो वैक्स होता है, वो क्या करते हैं? मिनिमाइज द वाटर इवेपोरेशन, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो प्लांट्स के अंदर। जो सिंपल लिपिड्स होते हैं, दे आर यूज्ड एज द हीट इंसुलेटर। जो थोड़े फैटी होती है जिनकी बॉडी, उनको ठंड थोड़ी कम लगती है। देखो जैसे दिखा रखा है, बंदा यहाँ पे ठंड के अंदर बैठा है, तो अगर दो पर्सन हो, एक की फैटी बॉडी हो, तो फैट क्या करता है? दे आर द हीट इंसुलेटर्स, वो हीट इंसुलेटर का काम करते हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज द शॉक एब्जॉर्बर फॉर द लिविंग, और लाइक जैसे हमारी जो आई होती है ना, आई जो आई बॉल होती है हमारी, आई बॉल के पीछे क्या होते हैं? आई बॉल के पीछे होते हैं लिपिड्स। वो क्या करते हैं? वो इसको कुशन की तरह काम करते हैं। जैसे रात को जो हम सोते हैं, तो हमारे जो हेड है उसके नीचे हम क्या लगाते हैं? कुशन लगाते हैं, तकिया लगाते हैं, ताकि हमें आराम मिले हमारे जो हेड को। वो सॉलिड स्पॉट के ऊपर नहीं रखते, जो सॉफ्ट पिलो होता है उसके ऊपर हम रखते हैं। तो सिमिलरली जो आईज होते हैं, आई के पीछे जो सॉफ्टनेस प्रोवाइड करते हैं, जो विसरल ऑर्गन होते हैं, जो बड़े नाजुक हमारे ऑर्गन्स होते हैं, लाइक द आईज, उनके बाहर से जो कोटिंग होती है बैक साइड में, जिसकी वजह से ये सारे जो भी शोक लगता है आई के ऊपर, वो इसको क्या कर सकते हैं? वो लोग सहन कर जाती है हमारी आईज, और हमारी आईज को नुकसान नहीं होता। तो वो फैट्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो फैट्स, जो फैट्स होते हैं, दे एक्ट एज द कुशंस फॉर द विसरल ऑर्गन्स लाइक द आईज। जो आपके ऑयल्स होते हैं, लाइक द कैस्टर ऑयल, दे कैन बी यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, दे कैन बी यूज्ड इन द फार्मेसी इंडस्ट्री। जो एलमंड ऑयल होता है वो मेडिसिन में यूज हो जाता है। कॉड लिवर जो ऑयल होता है, इट इज यूज्ड एज ए सप्लीमेंट फॉर द विटामिन ए और डी डेफिशिएंसी। विटामिन ए और डी की जब डेफिशिएंसी होती है, उस टाइम कॉड लिवर ऑयल एज ए सप्लीमेंट दिया जाता है। कैस्टर ऑयल इज यूज्ड एज ए परगेटिव, मींस जो स्टमक से रिलेटेड कोई भी डिजीज होती है, हमारी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वेस्ट मटेरियल जब अंदर चिपक जाता है, तो जब हम जो मेडिसिन लेते हैं, उन्हें परगेटिव्स कहते हैं, उस चीज की वहां से इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स की सफाई करने के लिए। सो तो कैस्टर ऑयल आमतौर पे जब दिया जाता है एज ए मेडिसिन, सो कैस्टर ऑयल इज यूज्ड एज ए परगेटिव्स। दे ऑल्सो used as important raw material for the manufacture of the higher alcohols। जैसे हमने देखा था, जो ट्राइग्लिसराइड है, अगर हम उनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल। ऐसे ही जो हम दूसरे ले ले, बोलो कौन ले ले हमारे, हमने देखा था जो आपके ग्लिसराइड है वो तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। वो कौन हो सकते हैं? आपके सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड में विद ग्लिसराइड, दे विद वैक्सेस। वैक्सेस में कौन होता है? अल्कोहल कोई और होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनेटम अल्कोहल्स। तो डिफरेंट हायर अल्कोहल्स हम यहाँ से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अगर हम वैक्सेस की हाइड्रोलिसिस कर दें। तो वैक्सेस की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? लॉन्ग कार्बन चेन अल्कोहल। और अगर हम ग्लिसराइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कौन मिलता है हमें? ग्लिसरॉल मिलता है। तो वैक्सीज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द स्पर्मेसिटाइल पाल्मिटेट, जो होता है, जो स्पर्म्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर या कोई भी एनिमल हो उसके अंदर। बी वैक्स के अंदर माइसेल पाल्मिटेट होता है। करंडुआ वैक्स के अंदर माइसेल सिरोटेट होता है। अब इसकी देखो स्ट्रक्चर देखो, देखो जो हनी बी होती है, जो कॉम्ब बनाती है, तो इसके अंदर तो क्या होता है? बी वैक्स।
आप इधर देखें कैरनबुआ वैक्स, ये कहाँ से मिलता है? आपने देखो ये ट्री आपने देखे होंगे, पाम ट्री होते, PALM लिखना था हमें। ये हमारे जो पाम ट्री होते हैं PALM, जो पाम ट्री होते हैं, इनके जो पाम लीव्स और जो इनके बर्ड्स होते हैं, वहां से ये कैरनबुआ वैक्स आपके एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, और इसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो ये थे यूजेस आपके ऑयल, फैट्स और जो वैक्सेस हैं इनके बारे में। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द सिंपल लिपिड्स, देयर प्रॉपर्टी, देयर यूजेस, देयर क्लासिफिकेशन। तो लिपिड्स की जो हमने क्लासिफिकेशन देखी, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड लिपिड के बारे में, तो टुडेज लेक्चर जो था हमारा, वो हमारा कंसंट्रेट रहा, मेन रहा सिंपल लिपिड्स के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, और जो सिंपल लिपिड्स थे हमारे ऑयल, फैट, वैक्सेस, उनकी हमने प्रॉपर्टीज और उनकी यूजेस को स्टडी किया। थैंक यू।